السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تعلیم تربیت کی دنیا. میں ہوں محمد یاسین. کوشچن نمبر 7 کا پارٹ ہم اے سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جس میں ہم میتھڈ یوز کریں گے ایلیمینیشن میتھڈ. کوشچن نمبر 7 ہے، اس کا پارٹ اے ہم سٹارٹ کریں گے. اس کے اس میں دو ایکویشن دی ہوئی ہیں. ایک دی ہوئی ہے x + 1 ڈیوائڈ بائی y + 2 3/4 اینڈ x - 2 y - 1 3/5. تو یہ جو کوسچن ہے، یہ اس کو تھوڑی سی ایکویشن کو پہلے سمپلیفائی کرنا پڑے گا. جس طرح پہلے کے باقی کے جو کوسچن ہیں وہ اس میں جو جس طرح 1 2 3 4 کی بات کرتے ہیں تو وہ اس طرح فریکشن میں نہیں ہے، سیدھی ایکویشن ہے. تو پہلے ہم اس کی ہیلپ سے یہ فریکشن کو ختم کریں گے، ایکویشن کو سمپلیفائی کریں گے، ایکویشن بنا کے پھر اس کے آگے ایلیمینیشن میتھڈ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں میں آگے ڈسکس کرتا ہوں. تو سمپل سی بات ہے، یہ بھی ایکویشن ہے، اس کو کراس ملٹیپلائی کر دیں. یہ جو اس کے نیچے 4 ہے وہ ادھر ملٹیپلائی ہوگا اور یہ جو 3 ہے وہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا، کراس ملٹیپلیکیشن. 4 × x + 1 = 3 × y + 2. تو یہ ہو جائے گا جی 4x، یعنی 4x سے پہلے ملٹیپلائی ہوگا، اسی طرح 4 پہ 1 سے ملٹیپلائی ہوا 4 1 4. 3 جب y سے ملٹیپلائی ہوا تو 3y ہو گیا. 3 جب 2 سے ملٹیپلائی ہوا تو 6 ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اسی کا ساتھ یہی کام اس ایکویشن کے ساتھ بھی کریں گے، کراس ملٹیپلیکیشن. یہ 5 جو ہے x - 2 ملٹیپلائی ہوا 3 × y - 1 ہو گیا. اور 5x، یعنی اس 5 کو پہلے x سے ملٹیپلائی کیا، پھر اس 5 کو کس سے ملٹیپلائی کیا، 2 سے بھی. تو 5 2 10 ہو گیا. پھر 3 کو y سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو 3y ہو جائے گا. 3 کو 1 سے ملٹیپلائی کرنا تو 3 1 3 ہو جائے گا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس y کو اس طرف لے ہیں. 4x - 3y = 6 - 4 ہو جائے گا. اب یہ ہوا کہ جو 6 ہے یہ جو 4 ہے اس طرف چلا گیا، جو y جو تھا اس طرف آ کے مائنس ہو گیا، کیونکہ اس طرف اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں تھا، اس کا مطلب ہے پلس ہے، اس طرف آ کے یہ مائنس ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی 4x - 3y = 6 میں سے 4 گئے تو 2 بچے، یہ کوئی 1 ہمارے پاس آ گیا. اب اسی طرح ہم یہاں سمپلیفائی کریں تو 5x اس 3y کو ادھر لے آؤ. جب اس 3y کو ادھر لے آئیں گے تو مائنس ہو جائے گا. دوسری طرف یہ دیکھو -3 کو ادھر ہی رہنے دیں، اس 10 کو اس طرف لے کے جانا ہے. جب 10 ایکول کو اس طرف جائے گا تو یہ مائنس سے پلس جب چینج ہوگا، جیسے یہ y ادھر آ کے سائن چینج کر دیا، 10 نے ادھر جا کے سائن چینج کرنا ہے. یہاں مائنس کا تھا تو ادھر جا کے پلس کرو گے. تو یہ کوئی ہمارے پاس کیا بن جائے گی، 5x - 3y = 7. یہ ہمارے پاس ایکویشن 2 آ گئی. اب یہ جو کوسچن ہے، یہ کوسچن بن گیا ہمارے پاس جیسے شروع کے کوسچن ہے، لائک کوسچن 1 ہے، کوسچن 2 ہے، تو اس طرح کے کوسچن جو ہے وہ ہمارے پاس بن گئے. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جیسے میں نے کوسچن شروع میں سٹارٹ کرایا تھا تو اس میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ جب آپ کے پاس اس طرح کی دو ایکویشن آ جاتے ہیں، اس ایکویشن کو ہم یہاں نیچے لکھ دیتے ہوں، میں پھر اس کے بعد آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. یہ ایکویشن میرے پاس ہے، اس ایکویشن کو میں نے یہاں لکھ دی. جب یہ دو ایکویشن آپ کے پاس آ جاتی ہیں یا آپ کے پاس گیون ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ x کے جو کوفیشینٹ ہے کیا وہ ایکول ہے. جیسے کہ یہ x ہے ایک ویریبل ہے، یہ 4 اس کا کوفیشینٹ ہے، یہ ویریبل یہ کوفیشینٹ. تو یہ x کے دونوں جو ویریبل ہیں، x کے شروع میں دونوں نمبر ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. تو پھر آپ y کو چیک کرتے ہیں تو y میں دیکھو ہمارے پاس یہاں بھی 3y ہے، یہاں بھی 3y. اگر تو y یا x کے جو ویریبل ہے x ہے یا y ہے اس کے ساتھ جو کوفیشینٹ ہے جیسے یہاں 3 ہے وہ ایکول سیم ہو، جیسا کہ یہاں پہ 3 ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کا سائن دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ ان کا کے ساتھ نمبر تو سیم ہے اور دیکھتے ہیں سائن بھی سیم ہے. اگر سائن سیم ہو تو پھر آپ ان دونوں ایکویشن کو کیا کرتے ہو، سبٹریکٹ کرتے ہو. تو آپ کیا لکھو گے، سبٹریکٹ ایکویشن 1 اینڈ 2 میں یہیں پر ہی لکھ دیتا ہوں، سبٹریکٹ ایکویشن 1 اینڈ 2، یعنی 1 اور 2 کو میں کیا کر رہا ہوں، سبٹریکٹ کرنا ہے. تو دیکھو سبٹریکٹ میں کیوں کروں گا، اس لیے سبٹریکٹ کروں گا کہ جب سبٹریکشن ہوتی ہے تو نیچے والے سائن چینج ہو جاتے ہیں. جب نیچے والے سائن چینج ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی ویریبل بچ جاتا ہے، ایک ویریبل کٹ جاتا ہے، دوسرا ویریبل بچ جاتا ہے، اس کی ویلیو آ جاتی ہے. ایلیمینیشن کا یہی مقصد ہوتا ہے، ایلیمینیٹ کرنا یعنی ختم کرنا. کس کس کو ختم کرنا ہے آپ چاہیں. اب یہاں پر ہم ایلیمینیٹ کر رہے ہیں کس کو، y. تو اب ہمارے پاس کوئی سائن نہیں ہے، یہاں پہ پلس کا سائن ہے تو ہم سائن چینج کر دیں گے. ان سائن کے گرد ایک چھوٹا سا سرکل لگا لیں اور ساتھ سائن چینج کر دیں گے. یہاں مائنس تھا پلس ہو گیا، پلس تھا مائنس ہو گیا، پلس تھا مائنس ہو گیا. تو اب یہاں دیکھیں یہ اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے، پلس ہے، تو 5 میں سے 4 چلے گئے تو پیچھے کتنے بچے، صرف x بچا. اب کیونکہ 5 بڑا ہے ساتھ سائن مائنس کا لگے گا، 5 is greater than 4 تو اس لیے ساتھ سائن مائنس کا لگا. یہ پلس کا 3y سوری مائنس کا 3y پلس کے 3y سے کینسل ہو گیا، ایکول. یہ دیکھیں ایکول کا سائن آ گیا. اب 7 میں سے 2 گئے تو پیچھے 5 بچے، 7 بڑا ہے ساتھ سائن مائنس کا لگے گا. اب اس طرف بھی مائنس ہے، اس طرف بھی مائنس ہے، تو مائنس سے کینسل ہو جائے گا تو x کی ویلیو 5 آ جائے گی. اب اسے کیا کریں، کوٹین 1 کر، کوٹین
1, आप चाहें तो 2 में पुट कर दें, आंसर सेम आएगा, वो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अब देखें पुट इन, चलो मैं 2 कर लेता हूँ। अब इस वाली इक्वेशन में मैं y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करूंगा। अब मेरे पास क्या है 5 है, आगे क्या है x की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है, मैंने 5 लिख दिया, -3y इज इक्वल टू क्या आ गया 7, 5 5 है 25। इसमें मैंने क्या किया कि जहां x था उस जगह ये x की वैल्यू किसकी इक्वल है 5 की इक्वल है, x इज इक्वल टू 5 है, तो मैंने क्या किया कि जहां x मुझे नजर आ रहा था वहां मैंने 5 पुट कर दिया, तो 5 5 से 25 -7 इज इक्वल टू 3y। अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ ये हुआ कि उस तरफ जो 7 था प्लस का था, इस तरफ आके आ गया माइनस हो गया, जो -3y था तो उस तरफ जाके प्लस 3y हो गया। y को इसलिए लेना किया क्योंकि y मुझे चाहिए। अब देखो 25 में से 7 गया तो पीछे कितने 5 19 बचा पीछे मेरे पास, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया 3y। अब मुझे क्या चाहिए 18, सॉरी 19 नहीं 18 बचेगा 18। अब मुझे क्या चाहिए y, 3 फालतू है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ y 3 6 यानी 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आके डिवाइड हो गया, 3 का टेबल 18 पे 6 टाइम जाता है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6। तो इस तरह मेरे पास जो दो वैल्यू मुझे चाहिए थी दैट इज 5 एंड 6, x और y की वैल्यू चाहिए थी, तो दोनों मैंने निकाल दी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 7 का क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन 7 है उसका पार्ट भी 7 का पार्ट है, आप लोग हो उसमें मसला को आप देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है एलिमिनेशन क्या है मेथड, एलिमिनेशन मेथड सबसे क्या करना है सॉल्व करना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह फ्रैक्शन की शक्ल में दिया हुआ है। आप जो पहले इससे पहले हमने जो काम किए हैं, जो पहले इससे पहले लेक्चर दिए उसमें हमने क्या किया है कि जैसे 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का 2 है, उसमें सिंपल इक्वेशन है फ्रैक्शन नहीं है। तो सिंपल हम ये करेंगे कि सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है इसको खत्म करेंगे, और फ्रैक्शन के बाद देखो ये बन जाएगी, तो फर्दर हम उसकी एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखें तो ये नीचे 3 है, ये 2 है, ये 6 है। अब अगर आप 3 2 6 का देखिए 3 है 2 है और इक्वल की तरफ 6 है, इन तीनों का एलसीएम लेना, 2 3 पे टेबल ही जाता है, इसी तरह 2 1 ज़र और 2 का टेबल 6 में 3 टाइम जाता है, फिर 3 1 ज़र 1 और 1। अब अगर आप देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, जी हमारे पास इसका क्या आ गया एलसीएम। अब आप ये करें कि इधर क्या लिखें मल्टीप्लाइंग 6 ऑन both sides, 6 on both, multiplying 6 on both sides. Why 6 on both sides? Because 6 is the LCM of 2 3 and 6, 2 3 2 6 का LCM 6 है, इसलिए हमें दोनों साइड पे क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय x by 3 minus 6 मल्टीप्लाई बाय y by 2 is equal to 6 मल्टीप्लाई बाय 5 by 6। हमने क्या किया इक्वल के इस तरफ x by 3 का इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई किया, y by 2 का इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई किया, 5 by 6 था इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 ज़र 6 कट गया 2x आ गया, 2 3 ज़र 6 3y आ गया, 6 6 से कैंसिल हो गया 5 आ गया, इससे हम इक्वेशन बात कर रहा हूं। अब आप देखें कि हमने ये किया जो फ्रैक्शन है इसको तो हमने सिंपलीफाई करके एक सिंपल इक्वेशन की शक्ल में हम ले गए हैं, तो इसलिए हमने 6 मल्टीप्लाई करना, ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप देखें तो इसको मैं फिलहाल इसी तरह लिखता हूं -2y 5y is equal to 5 3 15 16 and 17 by 5। अब ये देखो 17 by 5 कैसे है, इस चीज को आपने समझना है। वो ये इस तरह हुआ कि जो नीचे नंबर था ये 7 वाले वो नंबर से डिनोमिनेटर वो नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, इस साइड में नंबर आता है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 से मल्टीप्लाई तो 15 हो जाएगा। इन दोनों को जो रिजल्ट आएगा वो ऊपर वाले से के साथ ऐड हो जाएगा, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 हो गया, 5 3 15 प्लस ऊपर वाला को ऐड किया 17 हो गया। अब अगर देखें तो यहाँ पे जो है ये जो gx है इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है नहीं है तो 1 होता है सिंबल है, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इधर 5 है इधर 5 है, तो 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, इसलिए हम ये करेंगे इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड, इसी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए इक्वल का साइन है, जस्ट इसको सेपरेट करने के लिए मैंने लिखा है ऐसे निकालना 5 मल्टीप्लाई बाय 3x, यानी ये 5 इस 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 5 2 बाय जो 5 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 बाय 5 y से मल्टीप्लाई होगा, और ये 5 17 बाय 5 से भी मल्टीप्लाई होगा।
क्या हुआ 5, क्योंकि इस पूरे का एलसीएम जो 5 आता था इसलिए इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी मल्टीप्लाई हुआ और इधर भी मल्टीप्लाई हुआ। तो क्या हो गया 5 3 15, 5 5 से कैंसिल, 2 बाय 5 5 से कैंसिल, 17 आ गए मेरे पास, यहाँ पर आ गई 17, ये कोई आ गई 2। अब आप देखें इक्वेशन 1 भी हमारे पास आ गई, इक्वेशन 2 भी हमारे पास आ गई। अब ये जो क्वेश्चन की शक्ल है, ये क्वेश्चन की जो इक्वेशन है, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बिल्कुल इसी जैसा है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस टाइप की इक्वेशन उसने दी हुई है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ इसको आपने समझना है तो इंशाल्लाह आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद भी कर लोगे। मैंने 3 के कुछ लेक्चर अपलोड किए, बाकी भी कर लूंगा इंशाल्लाह। मैं 1 बाय 1 करके तमाम क्वेश्चन का लेक्चर अपलोड करूंगा। लेकिन ये होता है कि आप एक क्वेश्चन समझ लेते हो ना, तो दूसरा आप खुद एफर्ट करते हो तो आपको बेहतर तरीके से समझ आता है, इवन आपका जो कांसेप्ट है वो बेहतर तरीके से बिल्ड होता है। तो अब देखिए हमारे पास जब वो इक्वेशन आ जाती है, अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ 15x - 2y = 17, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है या आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है, इसकी हेल्प से सिंपलीफिकेशन करना वो इक्वेशन बनाते हैं, तो उसके बाद जो पहला काम करते हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड का एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, खत्म करना। किसको खत्म करना है? x को खत्म कर दो, चाहे तो y को खत्म कर दो। ये x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकाल दो, या y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू क्या कर लो, निकाल दो। तो अब आप देखते हैं कि क्या आपके x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, यानी कोफिशिएंट यानी सिमिलर x जो एक वेरिएबल है उसके साथ शुरू में नंबर रखा हुआ है, यानी ये x है, ये 2 इसका कोफिशिएंट है, यानी इसके साथ शुरू में जो नंबर रखा हुआ है वो। इसी तरह ये x है, इसके साथ शुरू में नंबर लगा हुआ 15, ये इसका कोफिशिएंट है। अब पहला काम ये करने के x के वो देखते हैं क्या ये इक्वल है, देखा हमने नहीं है इक्वल, चलो हम y को चेक कर लेते हैं। अब जब y को देखते हैं तो y के साथ इधर 3 है, इधर y के बेस नंबर भी इक्वल नहीं है, y के कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे कि इनको इक्वल करेंगे। अब इनको इक्वल कैसे करेंगे? आपके पास ऑप्शन ये है कि आप चाहें तो x को इक्वल कर लें, आप चाहें तो y को इक्वल कर लें। तो हमेशा आप ये करते हैं कि जो छोटी वैल्यू होती है ना, जिसके साथ जिसका कोफिशिएंट छोटा होता है, जैसे यहाँ बड़ा कोफिशिएंट है 15 है और 2 है, इधर 3 और 2 दोनों छोटे कोफिशिएंट है, तो जो छोटे कोफिशिएंट होते हैं उनको डील किया करें, वो आसान होता है। अब मैं ये करूँगा कि इसके साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज 2, वो मैं क्या करूंगा, इस 2 को मैं इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो इसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि जो इक्वेशन 1 है मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय क्या 1, इस इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इस y के साथ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड इक्वेशन 2 बाय 3। और ये जो इक्वेशन 2 है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ऊपर वाले y के साथ 3 है, तो लाजमी बात है जब ये वाला 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, ये वाला 3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। तो वेरिएबल इसके साथ ये जो वेरिएबल है y उसकी जो क्वांटिटी है या उसका कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2x - 2 मल्टीप्लाई बाय 3y is equal to 2 multiplied by 5. 2 multiplied on अच्छा इन दोनों यानी 2 on both side and 3 on both side, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी मल्टीप्लाई करो। अब बारी है 3 की, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी, इधर भी। पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2 2 * 4, 2 3 * 6 और 2 5 * 10। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है 3। अब ये मेरे पास मेरे काम की इक्वेशन है जिसको मैंने आगे देखा। अब इक्वेशन क्या करना है कि इसको जो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 17। 15 3 * 45 होता है, 3 2 * 6 45x - 3 2 * 6 17 3 * 51, यानी 17 का टेबल 3 टाइम्स 51 होता है। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 4। अब ये मेरे पास जो इक्वेशंस आई है 3 और 4, ये मेरे काम की इक्वेशन है। इनको इनकी हेल्प से वैसे आगे लेके चलूंगा। तो पहला काम ये करना है एलिमिनेशन में कि वेरिएबल को के साथ जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करना होता है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है मैंने इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से वेरिएबल y जो है उसको सेम कर दिया। यहाँ पे भी 6y है और यहाँ पे भी 6y। जब वेरिएबल सेम हो जाते हैं फिर आपने अगला काम ये करना होता है, देखना होता है कि इनके साथ साइन क्या है। इसके साथ क्या साइन है, माइनस, इसके साथ क्या है, साइन माइनस।
अगर तो साइन सेम है तो सेम साइन तो कटता नहीं है, -6 से तो नहीं कटेगा, तो फिर आप क्या करते होगे, सब्ट्रैक्ट करते होगे, यानी इक्वेशन में वो आपस में सब्ट्रैक्शन इक्वेशन की होती है। क्यों कि जब इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन होती है तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, जब साइन चेंज होता है तो लाजिम बात है एक प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो जाता है। तो ऐसा है कि ये थोड़ी सी जगह है, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ इसे कंप्लीट कर लूँ। अब मैं क्या लिखूँ, बस सब्ट्रैक्ट करूँगा, किसको सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, 4x minus 6y is equal to 10 है, and then 45x minus 6y is equal to 71, oh sorry 51, चेक कर लेते हैं, 4x minus 6y 10, then 45 6 and 15, yes। अब क्या करना है, नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, साइन माइनस कर दो, ये माइनस है इसको प्लस कर दो, इसके 51 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो इसे माइनस कर दो। 45 में से आपने क्या करना है, निकालना है 4, 45 में से 4 निकल गए तो हमारे पास नीचे कितने बचे, 41 बचे, 41 है because 41 is greater than 4, 41 जो है वो 45 जो है वो 4 से बड़ा है, इसलिए साथ साइन क्या लगाओ, माइनस, यानी 45 बड़ा है 4 से, इसलिए साथ साइन माइनस करेंगे। ये देखिए माइनस का 6x प्लस के 6 सॉरी माइनस का 6y प्लस के 6y से कैंसिल हो गया। दूसरी तरफ 51 में से 10 गया तो ये भी 41 बचेगा। अब क्योंकि 10 क्या छोटा है 51 बड़ा है तो साथ साइन क्या लगा, माइनस का। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -41 डिवाइड बाय -41। अब क्या हुआ कि हमें x चाहिए था, इसके साथ जो 41 है ये एक्स्ट्रा था, फालतू था, हमने क्या किया, ये जो 41 पे मल्टीप्लाई होता तो जाके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, 45 1 से 45 तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई। ये जो आपके पास x की वैल्यू 1 आई है, आप इसको जिस मर्जी इक्वेशन में चाहे 1 2 3 4 जिसमें पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं 1 में पुट करता हूं, पुट इन 1 यानी जो इक्वेशन मेरे पास 1 है उसमें x की जगह मैं 1 लिखूंगा। 2x है तो देखो मेरे पास 2 है, x की जगह 1 लिखूंगा। आगे है -3y इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 2 1 ज़ा 2 -5 इज इक्वल टू +3y। अब आपने ये चीज को समझी। अब ये जो 5 है इसके साथ उस तरफ कोई साइन नहीं था तो इसका मतलब है इसके साथ प्लस का साइन था, तो ये जब इस तरफ आया तो माइनस हो गया। ये जो 3y था माइनस का था उस तरफ जाके प्लस का हो गया, तो 5 में से 2 गए तो पीछे 3 बचे, 5 बड़ा है साथ साइन माइनस कर देगा और यहाँ पे आप +3y। अब मुझे क्या है, y चाहिए, तो y के साथ 3 क्या है, फालतू है एक्स्ट्रा, तो 3 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे दूसरी तरफ जाके डिवाइड होना है, तो -3 के साथ +3 जाके डिवाइड हो गया, 3 1 ज़ा 3 तो प्लस माइनस माइनस y, तो y को इधर लिखिए तो -1 को प्रॉपर ऑर्डर में लिखिए। तो इस तरह x और y की दो वैल्यू मुझे चाहिए थी, x और y की वैल्यू मैंने निकाली, तो इस तरह मेरे पास 7b का क्वेश्चन नंबर जो है d भी हो गया है। तो इसके साथ हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका पार्ट c है। इस वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नीचे जो फर्दर इसका पार्ट c है उसकी तरफ चलें। उसमें भी ये देखिए पार्ट सी है, पार्ट सी में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में दी और इसको हम क्या करेंगे, अगेन सिंपलीफाई करेंगे। x/4 3/8 5/3 एंड y/8। तो पहले ये दो इक्वेशन है, दोनों फ्रैक्शन में दी हुई है। अब देखिए अगर 4 और 8 का एलसीएम लेते हैं, 4 और 8 का एलसीएम लें तो 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2 into 2 into 2 is equal to 8। अब इसके एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसलिए हम ये वाली जो इक्वेशन है इस सारी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई 8 और बोथ साइड आप ऐसे आप चाहे तो इक्वेशन 1 कह दें, इसी इक्वेशन 2 कह दें, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय x/4 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3/8 y is equal to 8 मल्टीप्लाई बाय 3। 8 क्योंकि इन दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है दोनों का एलसीएम 8 आता है, इसलिए 8 इस x/4 से भी मल्टीप्लाई हुआ, 3/8 से भी मल्टीप्लाई हुआ और 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ। तो 4 2 ज़ा 8 तो मेरे पास क्या आ गया, 2x 8 8 से कैंसिल, 3y 8 3 ज़ा 24 मेरे पास इक्वेशन आ गई है जी। इसी को ये 1 कहते हैं ना, हो जाने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय
8 ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई, इसमें 2 क्या है, तो अब इस तरह क्या है, कैसे छोड़ें इसको 1 रहने दें, इसी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 1 में, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब मैं इधर इसके साथ क्या करूंगा, 3 और 2 का बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने 4 और 8 का एलसीएम लिया, जब 3 और 2 का एलसीएम लो तो 6 आता है, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का तो फैक्टर होता ही है, वो तो खुद इससे उसका अपना खुद भी डिवाइड होता है या 1 होता है। तो इसलिए इस तरफ मैं क्या करूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, इन दोनों को मैं क्या करूंगा 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड, 6 into y by 2 is equal to 6 multiply by 9। 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि के नीचे जो डिनोमिनेटर है जब उसको मैं एलसीएम लूंगा तो 6 आएगा, इसलिए इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए, ये जो फ्रैक्शन है उसको खत्म करने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ। अब देखो 3 2 is 6, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 3 is 6, तो 3y हो जाएगा, और दूसरी तरफ 12 6 is 72, 72 आ जाएगा। अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 2। अब मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 10x minus 3y is equal to 72 आ जाएगा, ये इक्वेशन 1। जब आपके पास दो इक्वेशन बन जाती हैं तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखते हैं कि x के क्या वैल्यू, जो x वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे x वेरिएबल है तो उसका a2 है कोएफिशिएंट और 10 है, दोनों के सेम नहीं है। फिर हम y को देखते हैं, इधर y के साथ 3 है, इधर y के साथ 3 है, तो y वेरिएबल जो है हमारे पास इसके साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज 3, दोनों के साथ सेम है। जब आपके पास कोई भी वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर होता है वो सेम होता है या कोएफिशिएंट जो होता है वो सेम होता है, तो फिर आप उसके साइन को देखें, तो साइन में आपके क्या दोनों के साथ क्या है, सेम है। जब सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्शन होती है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे मैं यही लिख दूं, आपने इसको दोबारा लिख लेना नीचे, आप क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, ये दोनों सब्ट्रैक्ट आप हमें यहीं पर ही सब्ट्रैक्ट कर देते हो। देखो ये प्लस, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसके साथ प्लस है, इसके साथ भी कोई साइन है तो प्लस है, तो साइन चेंज कर दो, प्लस को खत्म करके माइनस, माइनस को खत्म करके प्लस, प्लस को खत्म करके माइनस। 12 में से 10 में से टूट गया 8, 10 बड़ा है साथ साइन माइनस का, प्लस 3y माइनस 3y से कैंसिल। अब 72 है ना, अच्छा इसमें एक और चीज है, मैंने ऐसे लिख दिया, आप ऊपर मैं प्रॉपर चले आपको लिख के बता देता हूँ, हो सकता है आपके ज़हन में आ जाए कि सारी बेटा भी 2x minus 3y is equal to 24, ये में 1 आ गई, तो मैंने लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट 1 and 2। अब देखो मैं क्यों किया मैंने, तब मैं आपको रीजन बताता हूँ। 10x minus 3y is equal to 72 और then 2x minus 3y is equal to 24, ठीक है। अब मैं पहले तो सब्ट्रैक्शन की होना उसी तरह बाद में साइन चेंज हो जाना है, इसलिए क्योंकि हो सकता है ज़हन में हो आपके 24 में से 72 कैसे निकाल लिया, 2 में से 10 कैसे निकालेगा, तो इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू को ऊपर रखा, नीचे छोटी को नीचे रखा। बस इतना इसी एक चीज़ मेरे ज़हन में आ गई तो मैंने कहा इसको दोबारा कर दूं ताकि आपके ज़हन में अगर कंफ्यूजन हो रूल है उस तरह भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, सिर्फ साइन का चेंज आता है। इसमें डायरेक्ट आपके साथ साइन जो प्लस का आ जाएगा, जब उसके साथ माइनस आता है, लेफ्ट साइड इक्वल के इस तरफ भी माइनस आता है, इक्वल के उस तरफ भी माइनस आता है, तो माइनस माइनस से करेक्ट बात वही आ जाती है। तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि सारी चीज़ें कोशिश है कि क्लियर करता जाऊँ, कोई साइन में तो प्लस है तो माइनस, ये देखिए प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, 10 में से 2 है 8, 3 प्लस 3y माइनस 3y, 72 में से मैंने 24 निकाला तो मेरे पास कितना बचेगा, दैट इज 48। इधर से क्या लिया 12 में से 4 गया 8, 6 में से 2 गया 4, तो अब हमें x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 8, x के साथ 8 मल्टीप्लाई होगा उधर जाके डिवाइड होगा, क्योंकि मैं x चाहिए ना तो 8 इसके साथ फालतू, 8 6 है 48, x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैं क्या करता हूं, पुट इन 1 में मैं पुट कर देता हूं, चलिए मैं 2 पुट कर देता हूं, अब चाहे तो 1 में भी पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आपस एक आंसर सेम आएगा। तो देखिए मेरे पास क्या है, चलिए इधर मैं 1 में पुट कर लेता हूं, तो पिछले वाले में मैंने 2 में पुट किया था, तो आपके ज़हन में दे रहा हूं बार ये के लिए, ये देखो 2 है, आगे क्या है x की वैल्यू क्या 6 है तो मैं 6 लिख दूंगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 24, 6 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 माइनस 24 इज इक्वल टू 3y। इस टाइम में क्या हुआ, ये 24 इधर आ गया माइनस हो गया, ये माइनस 3 उधर जाके प्लस हो गया, तो यहाँ माइनस हमारे पास कितना बचेगा, ये 12 इज इक्वल टू 3y। अब 24 में से 12 गया 12 बचे, 25 बड़ा है, साथ साइन माइनस का लगेगा,
-12 ओवर 3 इज इक्वल टू y 3 4 12 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4। तो इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यू मैंने निकाली थी, वो निकाल ली। तो अभी इसका पार्ट डी की तरफ हम चलते हैं। वीडियो को पास करके इसका ऐसे लगा के ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो। तो डी और डी में है जी x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइड बाय 2। ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है 11x इज इक्वल टू 35। तो इसको पहले हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। 11x इस 13 की तरफ ले आओ -13y, दूसरी तरफ 0 बच गया। ये कोई 2 तो आसानी से बन जाएगी। इसको मैंने क्या था क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं थी, इसलिए सिंपल दी हुई थी, तो इसको y पर था, y को इधर ले आया, प्रॉपर इक्वेशन की शक्ल में लिख दी और दूसरी तरफ 0 लिख दी। अब ये नंबर है कि ये फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन को खत्म करके सीधे को ये बनानी है, इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये जो 2 है ये इधर आके x - 3 से मल्टीप्लाई हो, ये वाला इस तरफ मल्टीप्लाई हो, ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो, इसके साथ y - 7 के साथ 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 को y से मल्टीप्लाई किया तो 5y, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 5 7 जब क्या आ गया 35। अब देखिए ये 2x, ये 5y इधर आके माइनस का हो जाएगा, -35, ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। 2x - 5y इज इक्वल टू 35 में से 6 गया तो मेरे पास पीछे कितने बच गए -29। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है जी 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम एक साथ लिख लेते हैं। अच्छा इसमें सॉरी एक मिनट बना। अब आप देखें कि मैंने जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि क्या होता है कि जब आपके पास इस तरह प्राप्त इक्वेशन की शक्ल में दे दिया जाता है क्वेश्चन, या आप उनको बना लेते हैं, फिर आप क्या देखते होते हो कि आपके पास क्या है कि जो वैल्यू है वेरिएबल की x की क्या वो सेम है। यहाँ पे जो x वेरिएबल है ये 2x है और इधर क्या है 11x है, तो ये तो सेम नहीं है। फिर आप y को देखते हो, यहाँ y 5y है और इधर 13y है, तो ना तो x सेम है ना तो y सेम है। ये मेथड आपका क्वेश्चन नंबर 3 में यूज होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि या तो x को सेम करेंगे या हम क्या करेंगे y को सेम करेंगे। तो पिछले वाले जो क्वेश्चन सारों में मैंने y को सेम किया था, तो अभी मैं x को सेम करके उसको एलिमिनेट करूंगा। तो ऐसा करता हूं मैं कि इस x के साथ जो वेरिएबल है दैट इज 2, इस 2 को मैं इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ जो इस x के साथ इस वेरिएबल के साथ जो वैल्यू है 11, वो 11 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो होगा कुछ ऐसे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 11 and 2 by 2 on both sides। यदि इनके दोनों तरफ इनके इसी को ये दोनों तरफ क्या होगा 11 मल्टीप्लाई होगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 2x minus 11 मल्टीप्लाई बाय 5y is equal to 11 मल्टीप्लाई बाय minus 29। या पहले तो माइनस है ना तो उसको minus 29 मल्टीप्लाई बाय 11 है, तो एक ही बात है। 11 2 ज़र 22, 11 5 ज़र 55 और 29 और 11 29 9 390, तो -390 आ गया। ये मेरे पास आ गया ये इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, इक्वेशन 3 आ गई। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि इसी में आगे फर्दर सॉल्व। अब इस वाली इक्वेशन को मैंने क्या करना है, क्योंकि इसका इस वेरिएबल के साथ 2 है, इसलिए ये वाली पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11x minus 2 मल्टीप्लाई बाय 13y is equal to 2 मल्टीप्लाई बाय 0। 11 2 ज़र 22 हो गया, 22x 32 ज़र 26 26y और 2 0 ज़र 0 आ गया। ये कोई 4 आ गई। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4, तीनों चार को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देखें इधर भी 22 है, इधर भी 22 है, सेम है, साइन कोई नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए अब इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगी। अब सब्ट्रैक्शन होगी तो x एलिमिनेट हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, x एलिमिनेट होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x आ जाएगा।
अब मेरे पास क्या है 22x minus 55y is equal to minus 390 and then 22x minus 26y is equal to 0. तो अब मैंने क्या करना है सबट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होगी, ये देखो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस और 0 के साथ तो कोई साइन नहीं होता इसलिए उसको रहने देंगे। प्लस 22 और माइनस 22 काट जाएगा। अब 55 में से मैंने क्या करना है 26 निकाले, तो देखिए कैसे कैरी लिया 15 में से 6 गया 9 और 4 में से 2 गया 2 और 55 बड़ा है साइन माइनस का लगेगा और माइनस 319 आ जाएगा क्योंकि 0 है तो 0 तो प्लस हो जाए सब माइनस हो सेम ही रहता है। अब ये देखो y is equal to minus 319 divided by minus 29। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 29 का टेबल 11 टाइम जाएगा तो y की वैल्यू 11। अब देखो कैसे, ये देखिए अगर 29 को ना 11 से मल्टीप्लाई करो 9 1 जा 9 1 2 जा 2 1 9 जा 9 1 2 जा 2 9 9 up to 11 1 के और 319 आ गए 11 आ गए put in 1 में पुट करो 2 में पुट करो जिस इक्वेशन मर्जी में पुट करो आंसर सेम आ जाएगा 2x minus 5y is equal to minus 29। अब देखिए क्या है 2x, तो ये देखिए 2x मैंने ऐसे लिख दिया, आगे -5 का मैंने -5 भी ऐसे लिख दिया। y का तो y की वैल्यू 11 है तो y की जगह मैंने 11 लिख दिया, आगे इक्वल और 29 ऐसे है तो इस इक्वल और 29 ऐसे आ गया। 2x minus 55 is equal to minus 29। 11 5 is 55। 2x is equal to minus 29 plus 55। ये 55 उधर आके क्या हो गया माइनस हो रहा था तो प्लस हो गया, तो ये देखिए 55 में से 29 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इधर के लिए 15 15 में से लाएंगे 6 और 2 तो 2x is equal to मेरे पास कितना आ गया 26 plus 26 because 55 is greater than 29। तो अब हमारे पास क्या है कि x है चाहिए तो 2x है 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके 26 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 230 है, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 30। तो इस तरह x और y की वैल्यू निकाली और इसके साथ ही मेरा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉरी 7 कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किसी की कंफ्यूजन है तो जरूर बताइएगा।